A lot of leaders, practitioners often ask me, Pranay, how do we choose the improvement methodology that we should deploy? Question थोड़ा बड़ा है. एक basic thought that should help you answer this question comes from the thought that बीमारी identify करना पड़ेगा अगर इलाज या इलाज का mechanism decide करना है तो. So at a ballpark, some basic thoughts. Six Sigma must not be deployed when you know the solution. So if the solution is known, ensure that आप Six Sigma के रूट से न जाएं. If you know the solution, if you know the problem, so if the problem and the solution both are known, some organizations use Kaizen. Some organizations have developed their own framework around the Deming's principle of PDCA. कोई organization इसको structured problem solving कह रहा है. कोई बैंक ऑफ अमेरिका इसको जस्ट डू इट कह रहा है. Practitioners like us will call it a yellow belt, green belt, depending on the kind of organization that I'm targeting. Logic बहुत straightforward है. If you know the problem is known and solution is also known. For example, one of my customers, we are bleeding on the quality front. So I am currently dealing with about 6.5% of defects. And this is largely coming from a set of newer people in the system जिनका process knowledge का वाट लगा हुआ है. So if you know कि process knowledge की वजह से भसड़ हो रही है, so why do a Six Sigma project? आपको एक mechanism develop करना होगा, more like a project plan. How do you work on improving the process knowledge of those people? Process knowledge का assessment कैसे करेंगे? And finally, if I am able to improve my process knowledge, my quality score will go up. नाम does not matter. Some organizations are simply saying, Sir Deming का जो principle था, plan, do, check, act. So put together a plan. कि मुझे प्रोसेस नॉलेज में इंप्रूवमेंट करना है, मुझे क्या करना होगा? सो आई विल हैव अ डिटेल्ड कंटेंट ऑन व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आई शुड प्रिपेयर माय किड्स ऑन. व्हाटएवर द प्लान इज, देयर शुड बी एब्सोल्यूट अडियरेंस टू दैट. प्लीज चेक इफ एवरीथिंग हैज बीन डन एज पर द प्लान एंड शुड यू सी सम वेरिएशन और इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी. ध्यान रखना, एक्ट हैज टू हैपन इन बोथ केसेस. व्हेन यू फाइंड दैट देयर इज वेरिएशन बिटवीन प्लान एंड डू, or you see an improvement opportunity. Let's say one of my BPO customers, what we saw was that business has evolved और मेरा जो training content 10 महीने 8 महीने पहले तक use हो रहा था, that was not able to capture some of the updates that have happened in the last 8-10 months. उस update की वजह से, because वो training program का हिस्सा नहीं था, so there was some discussion around that, but वो formally हम लोगों को train नहीं कर रहे थे, which meant I had unskilled people going on the floor and making mistakes. वहां पे भसड़ होना ही होना है. In such cases, your business process should come back to you to say that, sir, there is an improvement opportunity in the training content. So act कब करना है? In both cases, when there is a variation between plan and do, or there is some improvement opportunity that you've identified. So irrespective of what you call it, Bank of America went to the extent of calling it just do it. मेरे customer हैं Global Logic, we called it a yellow belt. वहां पर हम ज्यादा statistics का deployment नहीं कर रहे हैं. We do define, we measure the data, we look at identifying the root causes, validating those root causes via certain basic investigations, improve plan बनाया, control plan बनाया. मेरे लिए control phase बहुत important है, इसलिए मैं इसको येलो बेल्ट के फ्रेम में करता हूं. टीसीएस इसको स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग कह रहा है, कोई एशियन पेंट्स इसको काइजन कह रहा है. डज नॉट मैटर. थॉट इज, अगर मुझे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों पता है, आई एम नॉट लुकिंग टू कॉल इट सिक्स सिग्मा. एक और क्वेश्चन आई हैव एनकाउंटर्ड एट सेवरल टाइम्स, दैट देयर इज अ सिचुएशन दैट माय बिजनेस प्रोसेस इज नॉट yielding the kind of outcome I want. And a very largish percentage of my business process is unable to deliver. मेरे कस्टमर हैं, हम लगभग 3.5 लाख ऑर्डर्स ले आते हैं. हम लॉक प्रोवाइडर्स हैं, जो हीरो होंडा और ऐसी बाइक्स में लॉक्स लगते हैं, हम वो लॉक्स बनाते हैं.
वीक 1 मेरी सेल्स टीम 3.5 लाख का ऑर्डर ले आती है। मेरा प्रोडक्शन लाइन का कैपेसिटी है अबाउट 3 लाख पर वीक, बट आई एम नॉट एबल टू डिलीवर ऑन दिस। मैं पूरे मंथ में ये टारगेट अचीव कर रहा हूं या इसको भी थोड़ा पीछे रह जा रहा हूं। दिस इज प्रोसेस डिजाइन का इशू। कोई भी फ्रेमवर्क इस्तेमाल कीजिए। सिंपलेस्ट ISO 9001। ISO 9001 का क्लॉज नंबर 4.4 कुछ मैंडेट्स कहता है। एक बुनियादी बात है लाइफ की, अगर आपका डिफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, इट इज नेसेसरली फॉर मी इट इज नेसेसरली पॉइंटिंग टुवर्ड्स मे बी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ही नहीं, मे बी inputs and resources haven't been identified, or maybe it is not being provisioned well. ये जो स्टोरी सुना रहा था अभी आपको मैं, दिस इज अ फैक्ट्री बेस्ड आउट ऑफ नारायणा। लिटरली हम बॉम्ब के अनुसार जो जो इनपुट्स चाहिए हमको वही इनपुट नहीं हम जुटा पाते हैं। उसका चैलेंज क्या है? आपके पास इनपुट का जो लिस्ट है वही करेक्ट नहीं है, उसमें थोड़ी एम्बिग्विटी है। तो अगर आपके पास इनपुट और रिसोर्सेज नहीं होंगे, ए आइडेंटिफाइड, बी प्लान्ड, सी प्रोविजन्ड, तो भसड़ होनी है। अगर आपके पास इस इनपुट को देने वाला सप्लायर आइडेंटिफाइड नहीं है, रिसोर्स को देने वाला सप्लायर आइडेंटिफाइड नहीं है, बिजनेस प्रोसेस से जो आउटपुट आ रहा है उसका हैंडलिंग कैसे होगा वो आइडेंटिफाइड नहीं है। सो इफ योर बेसिक SOP डिजाइन्स आर मिसिंग, इफ यू हैव नॉट आइडेंटिफाइड व्हाट मे गो रॉन्ग and you haven't set up your controls, लाइफ हमेशा पॉजिटिव नहीं चलेगा। आपके पास एक प्लान होगा, गॉड विल हैव अ प्लान बी। तो आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा वेयर योर बिजनेस प्रोसेस में गो रॉन्ग, एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट कैन यू डू। मुझे चाहिए थे 80 ह्यूमन रिसोर्सेस टू बी एबल टू डू इट। आई नीडेड हर लाइन पे एक सुपरवाइजर, मेरे पास 3 लाइन्स हैं। What if there is absenteeism? What if one of the resources malfunctions? आपको सोचना होगा और आपको कंट्रोल्स बिल्ड करने होंगे, आपको बिजनेस प्रोसेसेस के KPIs डिफाइन करने होंगे, एसेट्रा एसेट्रा। क्लॉज नंबर 4.4 ऑफ ISO 9001। Anyone who wants to be a good businessman must understand ISO 9001. Do not give a damn about the certificate. Certificate एक piece of paper है। आपको जब तक business processes सलीके से डिजाइन नहीं है, उनकी proper training impart नहीं हो रही है, वो time to time update नहीं हो रहे हैं, you are calling for trouble. मेरा personal advice हर practitioner को, हर professional को, हर entrepreneur को ये है दैट ISO 9001 तो कॉका है, बेसिक्स ऑफ लाइफ, बेसिक्स ऑफ बिजनेस इज व्हाट इज कवर्ड इन ISO 9001। आई एम नॉट सेइंग प्रोसेस डिजाइन के लिए सिर्फ ISO 9001 काम करेगा, कोई भी फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर लो। इफ यू आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी, CMMI इज ब्यूटिफुल। इफ यू आर IT सपोर्ट कंपनी, ITIL इज मैजिक। बट जुगाड़ बंद करो, प्रोसेस को सलीके से डिफाइन करो, उसके बिना बिजनेस हमेशा ब्लीड करेगा। लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। आई स्टार्टेड बाय सेइंग दैट सिक्स सिग्मा कब? यू ईदर डोंट नो द प्रॉब्लम एंड फॉर श्योर यू डोंट नो द सोल्यूशन। अगर आपको मालूम है मेरी कंपनी में एट्रिशन हो रहा है बिकॉज अभी हम गुड़गांव में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, भयंकर एट्रिशन है हमारे यहाँ, एंड वी नो देयर इज लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी इन आवर एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोसेसेस। तो वो 0 to 6 months वाले जो बच्चे हैं वो भगदड़ मची हुई है, बट आई नो देयर इज लॉट ऑफ रूम फॉर इंप्रूवमेंट इन माई एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोसेसेस। डोंट डू सिक्स सिग्मा, योर सोल्यूशन इज ऑलरेडी नोन टू यू, देन व्हाट डू? So when your problem is known, solution also known. Like we were saying, Kaizen, JDI, PDCA,
structured problem solving, whatever name you want to call it, yellow belt, white belt. मेरा बस एक ही एडवाइस है, कोई भी फ्रेमवर्क बनाइए, सस्टेन का प्लान होना चाहिए। मुझे इन सिस्टम्स में एक ही वीकनेस दिखाई देता है, अदर देन काइजन। इनमें एक ही प्रॉब्लम दिखाई देता है, अपन मेहनत करके इंप्रूवमेंट तो कर लेते हैं, जैसे ही आपका कंट्रोल खत्म हुआ दोबारा वो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इफ यू know about the problem, you know about the solution, you are deploying it, be sure that you are looking at building a very sustainable control plan, नहीं तो भसड़ हो जाएगी। अगर डिफेक्ट्स ज्यादा हैं, and I don't mean the term defect only, I'm saying anything that is not meeting the customer requirement. अगर मेरा CSAT बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, अगर मेरा डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, प्रोडक्शन का हम रेगुलरली अपने टारगेट्स मिस कर रहे हैं, अगर नॉन अचीवमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेस टारगेट्स बहुत ज्यादा हैं, देन दिस इज टाइम फॉर यू टू डू अ प्रोसेस डिजाइन। दिस कुड बी 9001, anything, CMMI, ITIL, depending on the company. You know, ITIL will work only when you are a IT support kind of a business. CMMI will work only when you are a software development, software acquisition or services firm. ISO 9001 आलू है, हर जगह चलता है, और कम से कम बेसिक तो आपका ठीक कर ही देगा अगर आप इंटेलिजेंटली ISO 9001 implement कर लें। And the final thing, lean, बहुत confusion है, बहुत इंडस्ट्री में confusion है। lean एक बहुत बड़ा टूल किट है, lean एक इंप्रूवमेंट मेथड नहीं है। lean में बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारा स्ट्रक्चर है। एक सिस्टम है called 3M. I have recently done a video on waste. मुदा मुरा मुरी तीनों पे कॉन्वर्सेशन किया है, मे बी यू मे वांट टू लुक एट दैट। सो व्हेन आई एम डूइंग द 3M, आई एम मे बी मोर लुकिंग एट ड्राइविंग एफिशिएंसीज। मैं अपने प्रोसेस का वेरिएशन टारगेट कर रहा हूं। मे बी थोड़ा जेनरिक भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैं अपने बिजनेस प्रोसेस में रैशनल ड्राइव कर रहा हूं। वो जो तुम्हारे सिस्टम में जुगाड़ बैठा हुआ है ना, वो जुगाड़ हटा रहे हो, सैनिटी ला रहे हो अपने बिजनेस प्रोसेस में 3M के थ्रू। मुदा मुरा मुरी, वेस्ट रिडक्शन, बहुत बड़ा थॉट है। लुक एट दैट वीडियो, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो प्लीज रीच आउट। दुनिया का जो सबसे ज्यादा कंसल्टिंग में इस्तेमाल होता है एक लीन का टूल है कॉल्ड वैल्यू स्ट्रीम मैप। ब्यूटिफुल बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग, डिजाइन सबके लिए इस्तेमाल होता है। आउटस्टैंडिंग मेथड। और लीन का सबसे अच्छा बात जो मुझे पर्सनली लगता है, एक इन माय जी डेज हमारे एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ही ऑफन सेड दिस, लीन में मुझे अच्छा लगता है प्रणय ये बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व लॉट ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस। सिंपल थॉट है, आप वैल्यू आइडेंटिफाई करो फ्रॉम अ कस्टमर स्टैंड पॉइंट और वैल्यू का फ्लो एस्टैब्लिश करो। फ्लो मतलब नदी की धारा। कहीं भी अगर वो धारा टूट रही है, कहीं भी बीच में एक अवरोधक आया जिसकी वजह से पानी आगे फ्लो नहीं कर रहा है, इस अवरोधक को, इस बॉटलनेक को, कहीं बिजनेस प्रोसेस में ऐसा हुआ कि सब्सिक्वेंट स्टेप इज वेटिंग फॉर इनपुट। मैं बैठा हूं खाली इंतजार में, मैंने अपने बॉस को मेल भेज दिया है, अप्रूव कर दो। अगर बिजनेस प्रोसेस रुका तो फ्लो टूटा। तो इनका बेसिक थॉट तीन चार टर्म्स पे है। आइडेंटिफाई करो वैल्यू, एस्टैब्लिश करो फ्लो, आइडेंटिफाई करो व्हाट आर द नॉन वैल्यू एड्स इन योर बिजनेस प्रोसेस, छोटे छोटे काइजन्स आइडेंटिफाई करो। आई नो आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस,
बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है. एनीवन ग्रेटर देन 5-7 years ऑफ एक्सपीरियंस, VSM पे PhD कर लो. बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंटेलिजेंट है. बहुत ध्यान से पढ़ो VSM को और जुगाड़ मत करना. अनपढ़ों की संख्या ज़्यादा है सोसाइटी में, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने VSM को कम जाना है, फिर भी वो तुमको पढ़ाने लगेंगे. पढ़ो इसको. और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे. TPS का टोयोटा के खुद के वीडियोस हैं, उनके वीडियो से पढ़ो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग को. रीच आउट अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो. VSM पे आई विल ऑल्सो डू अ डिटेल्ड वीडियो. सो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग largely is a end-to-end business process evaluation का तरीका, where you are identifying कहाँ भसड़ बैठी हुई है, कहाँ फ्लो टूट रहा है, कहाँ अपॉर्चुनिटी ऑफ इंप्रूवमेंट्स हैं. छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो निकल के आते हैं. आई विल टेल यू माई ओन स्टोरी. हम AIG में लगभग जनवरी-फरवरी में VSM करते हैं और इस VSM का आउटकम ये होता है कि हमारे लिए साल के 70, 80, 100 इंप्रूवमेंट्स मिल जाते हैं. सो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग कोई प्रोजेक्ट नहीं है, उससे हजारों प्रोजेक्ट्स निकलेंगे. वो आपको क्लियरली इन्वेस्टिगेट करके बता देगा कहां कहां भसड़ बैठी हुई है. Why were we discussing this? थॉट ये है that अगर आप एज अ बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, विच मेथड डू यू यूज? VSM is to be used when you want to build sanity. भूख कम है, औकात कम है, 3M करो. औकात ज्यादा है, तुम पूरे सिस्टम को ओवरऑल करने को तैयार हो, मेहनत करने को तैयार हो, VSM करो. लीन के ऐसे 50 और टूल हैं. नो, देयर इज अ 5S which is about workplace optimization. कोई स्पेगेटी डायग्राम है, कोई SMAD है. 50 ऐसे टूल्स हैं और हर का एक पर्पस है. SMAD which stands for single minute exchange of die. 5S का मतलब अगर आपके वर्क प्लेस को, खास करके फैक्ट्रियों को सिस्टमैटाइज्ड करना है, साफ सुथरा रखना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो और एंड समटाइम्स व्हेन यू स्टडी समथिंग लाइक लीन, सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज मुझे लगती है लीन के कॉन्वर्सेशंस में, पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इसमें इंटेलिजेंट क्या था. बहुत बुनियादी बात है. और ध्यान रखना, गॉड लाइज इन बेसिक्स. बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से दुनिया नहीं बदलती है, बेसिक स्टेप से दुनिया बदलती है. सो लीन विल बी अबाउट बिल्डिंग एफिशिएंसीज, बिल्डिंग लॉजिक इनटू योर बिजनेस प्रोसेसेस, बिल्डिंग सैनिटी इनटू व्हाट यू डू. और कभी बहुत डिटेल्ड केस स्टडीज में आपको समझाऊंगा कि कैसे चूज किया कि ये वाला प्रोजेक्ट लीन था और सिक्स सिग्मा नहीं करना था. I hope to see you in the next video. I hope this video is helpful. Thank you.